November 22. Okay. So, hi Mrutunjay. Everything well? Hello, Taha. Yes, all well. How is it Yeah. you? Yeah, fine. Everything fine. Okay. So, where are you now? In Ahmedabad? Currently, yes, in Ahmedabad. My final exam is there in November, so just got leave Okay. from the firm and came back to hometown for a study. Okay. Can you brief about your articleship in like your career prospects so that we can highlight our audience? Yeah, sure. First of all, thank you, Taha, for giving me this opportunity to represent myself at Vikasa Pune. Guys, myself, Mrityunjay Vaidya. I am living in Ahmedabad and I have done my articleship from Grant Thornton in LLP at Gurgaon location. I am living in Ahmedabad and my November attempt is for CA final. So, Yeah. first of all, I started my articleship in this COVID era. So, when I completed my CA intern in November 19, and my results came in February. So, at that time, only the Corona peak started. So, I felt so much difficulty in getting articleship. सो मैंने बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया, बिग फोर्स वगैरह, स्मॉल फर्म्स वगैरह। सो ऑफर्स भी अच्छी खासी जगह से आई। मैंने स्टार्टिंग में एज ए इंटर्नशिप वीडियो है, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 2-3 months in indirect taxes in this COVID period only, in first lockdown from March to May, March April May 3 months, I got to know that indirect tax is not my area. Means I feel like that indirect taxes, doing work in indirect taxes for 3 years is like this कि एक का एक काम बार बार करना है, वही 131 GSTR 1 फाइल करो, वही GSTR 3 भी फाइल करो. So means I feel like this is not my type of area. So I switched in July, and I joined TR Chetta and Company in Ahmedabad only. So I worked in TRs and I got a very good exposure in articleship. I started working in internal audit from TR Chetta only. So I worked for a very big listed client, uh, and after working there for 6 months, I switched to GT because I developed some attitude that internal audit is my core area. And in TRZ, I was working for 6 months for one client only. So, for further learning and further career perspective, I applied in Grant Thornton and joined in December 2020. So, since then, I'm working with GT only. And as of now, all the experience is very good. Okay. So, right from the video, you went to Grant Thornton, right? Yes. In video, you understood that indirect taxes is not a cup of your tea. So then you switch to Yeah. TR Chadda, and after that, getting a decent exposure to general areas, you switch to Grant Thornton. Okay. Yes. So For now, specialization in internal audit. yeah. So now you have so many milestones in your CV. So I would like to ask, like, what was the difference between the internal audit, then the first one, indirect taxes, and TR Chadda general exposure? Can you brief us something about that? Yeah, sure. First of all, let's talk about indirect taxes. So, indirect taxes is all about the law, which is drafted in indirect taxes. So, indirect taxes, we all know that main portion of indirect taxes currently is GST. Customs and all is there, but the main part is GST, and GST is totally on the law. So, you don't need to apply your mind implications on that, your personal skill, personal suggestions like that. In GST, only the law permits that you need to follow. So I think that अगर हमें वही लॉ पढ़ना है तो वो हम खुद कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए हमें 3 साल देने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर, अगर हमने कभी GST और 1 3 भी फाइल किया हुआ है, 996 हाउस हम लोग ने किया हुआ है, तो वो 1 2 बार 3 बार कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या होता है। तो मतलब उस चीज़ में 3 साल बिगाड़ना मुझे सही नहीं लगा। सो मैंने स्विच कर लिया। फिर मैंने TR चड्ढा जॉइन किया, तो TR चड्ढा में इंटर्न ऑडिट था। तो वहाँ पे दिक्कत क्या आई थी कि मैं एक ही क्लाइंट पे कर रहा हूँ, बट वो क्लाइंट सही में बहुत बड़ा था। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ अच्छा-अच्छा सीखा। सो इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट मेरे पास 2 ऑप्शन थे।
तो मैंने इंटरनल चूज किया बिकॉज स्टैट्यूटरी इज ऑल्सो लाइक वही हो जाएगा कि तुमको बैलेंस शीट खेलनी है, कि बैलेंस शीट मैप करना है, बैलेंस शीट के आइटम्स देखने हैं, उस आइटम्स के बाहर आपको कुछ चीज़ नहीं देखनी है। बट इंटरनल ऑडिट में ये चीज़ का फायदा रहता है कि आप हर चीज़ कवर करते हो क्लाइंट के लिए। क्लाइंट के लिए आप उसका प्रोडक्शन देखते हो, क्लाइंट के लिए आप उसका सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हो, क्लाइंट के लिए आप उसके कंप्लायंसेस वगैरह देखते हो। फिर क्लाइंट के बिजनेस को खुद अंडरस्टैंड करके उसमें कौन से रिस्क है वो आइडेंटिफाई करके क्लाइंट को समझाते हो वो रिस्क, और वो रिस्क से कौन सी चीज़ उसकी इफेक्ट हो रही है वो चीज़ आप समझाते हो। So I feel like internal audit is a growing area and learning opportunities are more as compared to stat audit and taxes. Stat audit is also good in India's implications and all. You got to know that IFRS, GAAP. So, but I feel like that internal audit gives all of this in one. So in internal audit we go to balance sheet items and all. We check that items also as of Ind AS, as of accounting standards, and taxes also we check. So it's internal audit is like combo of all of this. Okay. I want to but ask like general perception about e-audit, like internal audit is it is just a control testing type. We have to just see the controls and 3 years. Yeah, it is like not. Don't you think it is a monotonous work? Like we have to see the same controls and same. What are your views on it? Like I have uh, heard this. It is a general yeah. perception among the CS students. So can you help it to clear? Yeah, sure. There are many students and there are many firms. So it depends on where you are doing articleship. So speaking of myself only, I have done in TRZ also. In TRZ, I was doing same client only for 6 months. So in that type of scenario, it becomes monotonous work. So you are repeating the same work which you have done 2 months back, and you are doing same now. And after 2 months, you will do the same work. So that makes it monotonous. But in consultancy in big firms, you get to work on different clients. So speaking of myself, I have done audits of means most of the industries. As if I say education industry, I say car rental divisions, I say in travel industry, production industry. So this all makes that you work on different clients, and every in internal audit ये चीज एकदम अलग होती है कि हर क्लाइंट के लिए उसका रिस्क अलग होता है. सो हर ऑडिट से पहले आपको उसका बिजनेस समझना होता है और उसके बिजनेस के ऊपर से उसका रिस्क आइडेंटिफाई होता है. सो एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट की तरह सेम नहीं रहता कि बैलेंस शीट तो हर क्लाइंट की सेम ही रहने वाली है. बट Right. इंटरनल ऑडिट में उसके कंट्रोल्स अलग रहते हैं, उसकी बिजनेस अलग रहता है, उसका प्रोस्पेक्टिव्स अलग रहता है. सो मीन्स इफ यू आर वर्किंग 5 to 6 different clients in a total span of 3 years, so it's worthful. You get to learn so much things. Okay, great. So I think we are going to break the perception like internal audit is not just a monotonous work. It is a very interesting and a Yeah, creative type of work, like because हर client का yeah, business it's अलग रहेगा, creative. हर client का business model अलग रहेगा, हर client का ये अलग रहेगा. So we have to think creatively for every client, right? Yeah. So but ठीक है, work was interesting, but what about the work pressure? How was it? Like was it? So Yeah. uh, as you know, I'm working with Grand Thought, and the work pressure is like we can say that if client is asking that you need to submit the report within the 1 month, so we need to work hard. It's like that we need to work hard, plus we need to work smartly and devote the time accordingly to complete the audit on time. So as we all know that audit is generally doesn't take completes in 1 month, so it Right. takes some of the time. And if we can give audit report in 1 month also, but that will lead to compromise in the quality of the audit. So quality of the audit is must for any client, or if you are working for any firm also, the work which you are doing that should be 100% perfect. That needs to be other on priority basis. So हम लोग वर्क कंप्लीशन वगैरह के कभी कभी तो ऐसा होता था सैटरडे संडेज भी काम करता है. संडे तो मतलब ज्यादातर नहीं किया हुआ, बट सैटरडेज तो किया हुआ है मैंने. सो कभी कभी तो Okay. ऐसा हुआ है कि हम लोग सैटरडे नाइट को भी 11 11 12 12 बजे तक काम कर रहे हैं. बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि क्लाइंट की कमिटमेंट्स क्या है हमारी. Okay. क्योंकि So कोविड एरा था Jan. तो कोविड एरिया में सब तरीके से ऐसा था कि क्लाइंट्स बोले हमारी टाइमलाइन है या रिपोर्ट देना है, और ऑनलाइन ऑडिट्स तब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे.
राइट। तो उसमें एक छोटी सी चीज के लिए आपको मीटिंग करनी पड़ती थी, फिर वो डॉक्यूमेंट स्कैन करता, वो स्कैन करके भेजे, फिर आप चेक करो, फिर उसमें क्वेरी लो, फिर क्वेरी वापस उसको मेल करो। बट रेदर ऑन, अगर आप ऑन साइट होते उस वक्त, तो ऑन साइट वो डॉक्यूमेंट देख के तुरंत हैंड टू हैंड 5 मिनट में काम हो सकता था। तो वही काम ऑनलाइन ऑडिट्स हम लोग जो किए हमने कोविड एरिया में, तो उसमें वही चीज करने में 1 डेढ़ दिन चले जाता था पूरा। तो इस वजह से वर्क प्रेशर हमें खुद पे हाई आ जाता था, क्योंकि क्लाइंट कमिटमेंट थी। राइट। But generally it is not so much work pressure. It's like you can handle. सो एवरेजली मतलब कितना होता है, इफ वी कैन डिफाइन इट इन एवरेज वर्किंग आवर्स टर्म्स, सो कितना, व्हाट इज योर Average per आंसर? week, I can say it is about 40 to 45 hours average a week. ओके, यानी 8 hours per day if you say 5 working days, then Yeah, 8 to 8.5 hours. Yeah. okay. Okay, and now you are currently, you have also studied for CFNL, so what do you think, like this practical work exposure, have they helped in the audit paper or any other papers in CFNL? Yeah, sure. I would like to say that I have done audits. So in internal audit, you get to work in finance also. You get to work in audits also. You see the balance sheet items and all. So it helps in balance doing audit and taxation to some context. In taxation you go to the client, you see the TDS and also deductions, and you just came to know that you are seeing this daily. So आप clients की हर चीज को daily देख रहे हो, monitor कर रहे हो, पेमेंट्स वगैरह देख रहे हो, जीएसटी वगैरह भी ठीक से हो रहा है कि नहीं, पोर्टल्स वगैरह उनके आईटीसी क्लेम की वो है क्या नहीं, वो सब चेक कर रहे हो। तो टैक्स में बेनिफिट होता है, ऑडिट में बेनिफिट होता है, फिर सम कंटेक्स्ट तक एफआर में भी बेनिफिट होता है कि जो क्लाइंट्स को इन डेज मैंडेटरी है, तो वहाँ पे आप चेक करते हो कि उनकी इन्वेंट्री से वो प्रॉपरली वैल्यूएट है कि नहीं। सो सब कुछ तरीके से मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो जाता है, कॉस्टिंग वगैरह सब रह जाता है। सो मीन्स वो ज़्यादातर जगह पे रह ही जाता है। सो मीन्स वी कैन से दैट हमारा टोटल वर्क में से 30-40% हम लोग स्टडी में इम्प्लाइड करते ही है। Okay, okay. So suppose we take an example now, like I'm doing articleship in stat audit. So in this, suppose like let us take example of two things. First is area of property, plant and equipment, and second we take Yes. it from the P&L, that is other expenses. Okay, or let's take Yeah. revenue. Okay. So what we'll do in property, Okay. plant and equipment, first we'll verify the schedule, FA schedule. We'll see the additions. We'll match Yep. the. We will cover the assertion completeness. Okay. We will match it with the Yeah. FA schedule and everything. Then we will roll out samples from the FA schedule, like what client have provided us, fixed register schedule. We will roll out samples from it. Then for the samples, we test the PO, invoice, GRN, and capitalization certificate, etc. Okay. So how will you cover this in internal audit? Like this is from a stat audit perspective. What do you do in internal audit for Yeah. this? टॉकिंग अबाउट द इंटरनल ऑडिट की जो चीज़ आपने बताई कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड फिक्स्ड सेट, यू टॉक्ड अबाउट Right. एंड अदर एक्सपेंसेस। सो इंटरनल ऑडिट में ये सारी चीज़ें अलग अलग स्कोप में कवर होती है कि लाइक इंटरनल ऑडिट में क्लाइंट के साथ जब भी कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है तो उसके साथ स्कोप डिसाइड किया जाता है। तो स्कोप में ज़्यादातर कॉमन कॉमन स्कोप्स जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक है फाइनेंस एंड अकाउंट, जो फाइनेंस एंड अकाउंट, ट्रेजरी, ये सारी चीज़ें आ गई फाइनेंस एंड अकाउंट में। तो इसमें एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। फिर दूसरा आता है प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट में वो जो आपने बताया पीओ वगैरह का, कैपिटलाइजेशन वगैरह का, ये सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट में कवर हो जाती है। और तीसरा इसको पता है फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट। तो फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट में उनके जो भी एसेट्स वगैरह, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, कैपिटलाइजेशन, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड परफेक्टली और नॉट, वो सारी चीज़ें वहाँ पे चेक हो जाती है। सो इट्स लाइक दैट कि आप लोग जो एक इंडेक्स के एक आइटम पकड़ते हो उसको यहाँ पे 3-4 अलग-अलग चीज़ों में बाइफरकेट किया जाता है। इट मीन्स एज़ ऑफ द स्कोप वी डू द ऑडिट। See in first quarter we did finance and accounts and procurement. Then in second quarter we work on fixed asset management and compliances like that. Okay. So So statutory audit में जैसे ये सारी चीज़ें एक में कवर हो रही है, यहाँ पे वो स्कोप वाइज अलग-अलग में कवर हो जाती है। okay. So what I understand is कि मतलब stat audit में what we do, we pick up the balance sheet, we pick up the P&L, then balance sheet के item individually we will test it. But in internal audit, we are not Yeah, seeing balance sheet and P&L. We are seeing it from a process point of perspective. यानी पहले PO आएगा, yeah, जो भी होगा, procurement process, order to cash process, then yeah. expense process. F. अच्छा. Okay, great. Further I want to ask के stipend कितना है भाई
सबका सवाल यही होगा, स्टाइपेंड कितना है? स्टाइपेंड सो जनरली मैं बात करूँ तो मैंने जब आर्टिकलशिप स्टार्ट की तो वीडियो में आई वाज गेटिंग 7,000 a month. Uh, After that, I switched to TR Shutter. There I got 4,000 a month, and after that, currently I'm getting 14,000 a month. So it is in GT it is 14, 10, 14, and 18. Okay. Okay. For So first year it is 10, second year 14, and third year 18,000. okay, okay. So now, can you give us an example of strategic consulting? Like, if you can pick up a process or something, and you can just explain it. What is strategic consulting? Yeah, so it is something like it is totally dependent on the internal audit work which we have done. So like we have done some audit for procurement, so we seen that there is some process gap in total the procedure, and that leads to risk to the management, which might lead that them financial loss or operational loss, like that. So we recommended changes in their process and let them work on this and let them increase the revenue from that. हम लोग उनकी पूरी प्रोसेस देखी, वहाँ पे देखा हमने कि ये चीज़ में गड़बड़ है, कि जैसे हम प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो प्रोक्योरमेंट में ऑनलाइन अप्रूवल्स वगैरह होते हैं, सबके पीओ वगैरह है तो उसको Right. सैप में ही अप्रूव वगैरह करते हैं Right. कि सिग्नेचर्स वगैरह, तो वहाँ पे कहीं पे एक चीज़ में गैप है। तो कोई चीज़ क्या लोग क्या करते हैं उस चीज़ का कि जैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि जैसे एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है कंपनी का, उसमें लिखा हुआ है कि 5 लाख तक के एक्सपेंसेस ये अप्रूव करेगा, और उसके बाद अगर 5 लाख से बढ़ रहे एक्सपेंस तो जॉइंट अप्रूवर्स आ जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं जनरली कि 5-5 लाख के 5 लाख से कम के 3-4 पीओ बना देते हैं। Right. तो जिससे एक ही बंदा अप्रूव करेगा, जॉइंट अप्रूविंग आएगा नहीं, और Right. कोई भी पॉलिसी का वायोलेशन नहीं होगा, तो हम Right. वो चीज़ चेक करते हैं। वहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ फ्रीक्वेंटली हो रही है या इनफ्रीक्वेंटली हो रही है, और अगर फ्रीक्वेंटली हो रही है तो वो चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, और उस चीज़ में कोई भी कहीं पे फ्रॉड इन्वॉल्व है कि नहीं। तो हम Okay. क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप ये, अगर वो फ्रीक्वेंटली हो रही है तो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ आप ठीक करिए। ओके, सो मतलब इसको आप टेस्ट कैसे करोगे अभी, कि मतलब हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि मतलब वो एक ही पीओ को 5 टुकड़ों में अलग अलग उन्होंने तोड़ा था और फिर अप्रूव के लिए डाला था? हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर वेंडर हुआ, राइट। वेंडर समथिंग एक्स वेंडर एक्स है, उससे हम लोग रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो ओके। हम रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं तो हमारा रेट नेगोशिएट हुआ उसके साथ, तो उसके में हमें नेगोशिएशंस की वगैरह की ज़रूरत है, कोटेशंस वगैरह की ज़रूरत नहीं, जो हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कर लिए। तो लोग क्या करते हैं कि उसके पीओस को एक ही वेंडर के 5 पीओ बनाएँगे, एक ही डेट के बनेंगे, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल की राइट। रिक्वायरमेंट तो एज़ ऑन डेट है, तो हमें राइट। रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीओ तो आज ही बनाना है। तो बट वो लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में 5 या 6 पीओ बना देते हैं। तो एक ही दिन में एक ही वेंडर के 5-6 अलग-अलग पीओ आपको मिल जाता है। तो आप वहाँ से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है। आपको परचेज़ ऑर्डर रजिस्टर लोगे क्लाइंट का, उसमें डेट फ़िल्टर लिया और वेंडर फ़िल्टर लिया। तो एबीसी से फ़िल्टर कर लिया, हमने सॉर्टिंग कर ली, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से सेम डे पे बने हुए हैं और कौन से डिफरेंट डेज़ पे बने हुए हैं। ओके, ओके, ओके। सो आई विल आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन, लाइक आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस व्हिच इज द मेन मोटो ऑफ द टॉक, कि आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसमें मतलब क्लाइंट ने ऐसा कुछ फ्रॉड या ऐसा कुछ तो किया होगा, या आपको कोई इंसेंटिव्स ऑफर हुए होंगे कि प्लीज डोंट रिपोर्ट इट इन योर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो मतलब यू कंसीडर कि ये हमारे 3 साल की आर्टिकलशिप का बेस्ट एंड व्हिच वाज द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस? Yeah, Tah, just give me 1 second, give me या 1 second. या So, yeah, Tah, sorry for the या interference. या नो इशू। अब ये बात करना फ्रॉड की, तो जनरली फ्रॉड्स होते नहीं है, वो पता लगता है कि ये फ्रॉड है। जो भी प्रोसेस ऑनर होता है उसे भी पता नहीं होता कि वो फ्रॉड कर रहा है। बट ओके। एक मैं एक 100% फ्रॉड का इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं जब एक बहुत बड़ी एमएनसी थी, तो उसकी ओके। एक ब्रांच थी राजस्थान में। ओके। तो मैं एंटिटी का नाम नहीं ले सकता, बट यस, मैं यस। आपको बता रहा हूँ। तो यस। वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनके पास एक बहुत बड़ा असेट था, तो वो असेट की वैल्यू समथिंग 4 to 5 करोड़ रुपए थी। ओके। तो वो असेट ऐसी थी कि वो आप कहीं पे भी ले जाके यूज़ कर सकते हो।
तो अब वहाँ पे तो छोटी सी ब्रांच है, तो मैनेजमेंट एंश्योर करने के लिए कि उन्होंने कंट्रोल लगाया था कि एक बंदा वहाँ पे जाके हर वीक में एक फोटो लेगा असेट की, कि ओके। ये फोटो ये एसेट यहीं पे है। तो हम लोग जनरली वो चीज़ चेक कर रहे थे, तो हमें पता चला, अब उसने फोटोज वगैरह सब भेजे क्लाइंट ने ब्रांच से, तो फिर हम लोग मीन्स ये चीज़ एकदम माइनर चीज़ है, ये चीज़ में कोई रिस्क हो भी नहीं सकता, राइट। बट हम फोटोज देख रहे थे, तो फोटोज देखते देखते हमें पता चला कि सारे फोटोज तो एक ही दिन क्लिक किए हुए हैं। ओके। सो लाइक अब जो मैं एमएनसी के लिए वर्क कर रहा था, अब ये चीज़ इतनी मेजर थी भी नहीं कि जो हाँ। मुझे ऐसा लगा कि रिपोर्ट करनी चाहिए। देन ऑल्सो एज बीइंग आर्टिकल आई रिपोर्टेड टू माय सीनियर, and my senior reported further कि this is that. So the client reacted means कि proactively means क्या कह सकते हैं हम लोग, जिस एक ये चीज़ सुन के क्लाइंट बोले कि ये चीज़ तो गलत हो रही है, तो क्लाइंट ने वहाँ पे जो बंदा था कि दैट वाज ब्रांच हेड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच हेड की थी कि ये फोटो उसे क्लिक करना है, ओके। तो उसने ब्रांच हेड को वहाँ से हटा दिया, दूसरी जगह पे ला दिया कि आप गलत, आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, बट आप चीज़ गलत मत करो। क्लाइंट का ये पर्सपेक्टिव था, इस वजह से उसको निकाल दिया था वहाँ से। सो मीन्स दिस वाज लाइक वन फ्रॉड। फिर दूसरा एक था कि हम यहाँ पे मैं टैक्सीज इनडायरेक्ट टैक्सेस में कर रहा था, तो वहाँ पे एक मेजर फ्रॉड मिला था कि वहाँ पे एक न्यूज़ एजेंसी थी, तो उसका थोड़ा इनवॉइसेस वगैरह फॉर वो करते हैं, सब लोग करते हैं, सबको पता है कि राइट। जीएसटी में फेक इनवॉइसेस क्रिएट वगैरह, तो राइट। वहाँ पे एक वो इंसिडेंट मिला हुआ था। तो वो भी मीन्स जनरली नॉट डन बाय मी, बट बाय whole team we found that this is the problem, and we suggested client that if you are doing this we are not working for you, because as being a entity and a reputed firm, you don't work in that fraud area, you just report to the management and leave. राइट। 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 और इंसेंटिव का कोई एग्जांपल होगा आपके पास? जैसे हमें इंटर में ऑडिट्स की बुक्स में तो बहुत बताते हैं कि क्लाइंट विल ऑफर यू, ये थ्रेट फेमिलिटी थ्रेट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर वेरियस थ्रेट्स। क्लाइंट्स मीन्स अब मैं बताता हूँ आपको कि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है। इंटरनल ऑडिट में हम काम करते हैं क्लाइंट के लिए। अब राइट। हमें कोई फ्रॉड मिला, अब जैसे आप स्टैट ऑडिट में काम करते हो, तो स्टैट राइट। ऑडिट में तो आप डायरेक्टली रिपोर्ट इन द रिपोर्ट एंड दैट रिपोर्ट गोज टू एमसीए, राइट। तो गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। राइट। बट इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि हम लोग मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो हम यहाँ पे फ्रॉड आइडेंटिफाई करते हैं, तो भी जाता मैनेजमेंट तक है। फिर वो मैनेजमेंट एंड हमारे फॉर्म के जो पार्टनर वगैरह हो, एक्स वाई जेड, जैसे ये इंसिडेंस मैंने अभी तक तो देखा नहीं, बट मैंने